बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज बात करेंगे MCM 301 की जो असाइनमेंट आई है उसके हवाले से। ये लेसन नंबर 3 इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के हवाले से है। इसमें एक टास्क है कि इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के हवाले से कि 5 रीजंस बतानी है कि कोई असेसमेंट या कोई भी वर्किंग जो है वो इनअप्रोप्रिएट हुई है। 5 रीजंस उन्होंने बता दिए हैं और नीचे 3 टास्क हमें दिए हैं और ये तीनों टास्क इन 5 रीजंस में फिट करना है। सॉरी, उन 5 रीजन में से कोई ना कोई रीजन इन टास्क में फिट करना है और फिर जस्टिफिकेशन देनी है कि वो क्यों है। तो हम टास्क 1 पढ़ते हैं। टास्क 1 बेसिकली है कैरन मीट्स जूलिया फॉर द सेकंड टाइम एट कॉलेज बर्थडे colleague's birthday. Both share an educational background and economics, having graduated from same university but in different years. As they start discussing their student life memories, they are surprised to discover for both surprised by some same professors for the final year project, which is purely coincidental. Despite this, Carol doesn't feel the need to overemphasize their shared experience. Karen was very critical of the current economic policies of country and just assume that Julia also keep the same stance on this issue, making this meeting very pleasant and enjoyable. On the other, Julia has different opinion and Carol is unaware of it because it's not being discussed. अब यहाँ पे कौन सा ऐसा इनऑपरेट असेसमेंट हुई। बेसिकली क्या हुआ कि कैरल ने यही कंसिडर किया कि जो मैं सोच रही हूँ वही जूलिया सोच रही है। हम यहाँ पे आते हैं जरा। वी आर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस वेयर वी हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विद अदर पीपल। हम जो सोच रहे होते हैं हम समझते हैं कि अगला भी यही सोच रहा है क्योंकि हम सेम फंक्शन, हमारी सेम डिग्री है, सेम स्कूल से पढ़े हैं, सेम टीचर ने हमारा फाइनल प्रोजेक्ट भी कराया है, तो हमारी थिंकिंग भी सेम होगी। ऐसा नहीं है। ठीक है। बेशक बैकग्राउंड एक्सपीरियंस कोई भी हो लेकिन हर बंदे की थिंकिंग, हर बंदे की पॉलिसीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंट होती हैं। दैट्स वाई जूलिया का ओपिनियन डिफरेंट था। अगला था, after working hours, Ali approaches his boss in the office and politely requests a salary increase, highlighting his dedication and commitment. His boss listens calmly and patiently, then assure Ali that a small increment will be made by the end of the year. Feeling pleased, Ali leaves the office and later shares the good news with his colleague John a few days later. The company experiences a minor loss, promoting the boss to instruct all employees to work harder to recover from it. The team respond by increasing their efforts. Meanwhile, John, who is also diligent and consistently meets deadlines, decide to approach the boss for the same manner. After office hours, John requests a salary raise, expecting a positive response so he can plan a summer trip abroad. However, the boss immediately rejects John's request and strictly asks him to leave the office. अब यहाँ पे देखिए, पहले उसने ट्रिप प्लान किया और फिर जाकर बॉस से मिला, तो ये उसने गलत किया। खैर, हम देखते हैं कि हमारे पास रीजन क्या है। वी अज्यूम दैट पीपल वुड बिहेव द सेम वे इन एवरी सिचुएशन। हमने अज्यूम किया कि बॉस ने उसकी राइज कर ली तो मेरी भी कर देगा, तो वो ट्रिप प्लान करके चला गया। ये उसने गलत किया। तीसरा रीजन आता है जी, तीसरा सिचुएशन आती है। इट्स बीन मोर 5 years सिंस डेविड हैज बीन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन विद प्रोवाइड IT related services to the corporate sector. One day his colleagues Sarah again noticed that David isn't very good public speaking. ठीक है। हम डायरेक्टली चलें जी, इस डिस्कशन में नहीं आते। बेसिकली सिनेरियो क्या था कि जो सारा है कि जो डेविड है उसको 5 साल से ज़्यादा हो गया है ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए। ठीक है। सारा जो है फर्स्ट टाइम मिली है अपने डेविड से। She discussed upcoming project with David and just assumed that since David struggles in verbal presentation, he must not skilled in any of the communication at all, ignoring the fact that David is highly effective in one-on-one written communication. David इतना ज़्यादा वर्बल कम्युनिकेशन में स्ट्रांग नहीं था, वो स्ट्रगल्स कर रहा था। तो सारा ने ये डिसाइड अज्यूम कर लिया कि वो भी उसकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी। यहाँ पे क्या है, वी आर टू इन्फ्लुएंस्ड बाय अपेरेंट नेगेटिव पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज नॉट वेरी गुड एट शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, वी माइट अज्यूम दैट ही इज नॉट गोइंग टू बी गुड एट लॉन्ग टर्म प्लानिंग आइदर। वो अगर कम्युनिकेशन नहीं प्रॉपर नहीं की उसने, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में भी प्रॉपर काम नहीं कर सकता। तो ये 3 आपके सिनेरियोज हैं, ये आपका पूरा असाइनमेंट का सोल्यूशन है। ठीक है। अब जो इन ऑपरेट असेसमेंट है ये तो एज इट इज आप लिखेंगे क्योंकि मैंने भी कॉपी पेस्ट ही किया है।
लेकिन जस्टिफिकेशन आप अपने हिसाब से देंगे। मैंने पढ़ के नहीं बताई, मैंने जनरल डिस्कशन की है ताकि आप लोग अपने मुताबिक इसकी जस्टिफिकेशन दे सके। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ असाइनमेंट आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।